Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration. Course code is MPA 406 and lecture number is 25. So before we move on towards our today's topic of discussion, let us have a brief reflection of what we have discussed in our previous lecture. So in our previous lecture we have talked about delegation, we have talked about different styles of decision makers, we have talked about decision making, we have talked about different roles of and functions of Planning Commission of Pakistan. So talking about decision making, we talked about like what is the decision making process and why and how decisions are made and what are the procedures for making decisions. So we discussed 7 C's of decision making process. Then in our previous lecture we have talked about different styles of decision makers. Okay, what are the different styles of decision makers? Like for example, we have seen that what are the different like managers who are working in different organizations, how they make their decisions. Like for example, some of the managers who are working in the public sector of Pakistan, what they do is they invite their subordinates, they get their feedback, they get their suggestions, and then after a consensus, after a mutual agreement, so then those managers, they make their decisions. So they are including the feedback taken from their subordinates in their decisions. On the other side, there are some managers who go to their employees or invite their employees in their offices and get individual feedback. So in this case, a manager जो है public sector में वो एक अपने subordinate से, अपने team member से एक individual feedback ले रहा है और उस individual feedback को अपने decision making के लिए वो may be use कर रहा है या नहीं कर रहा, that depends on the of course that decision maker कि वो उस influence को अपने decision making में reflect करता है या नहीं करता. On the other side, जब एक मैनेजर जो है वो तो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को ग्रुप की सूरत में इनवाइट करता है और एक तमाम ग्रुप की सूरत में गैदर करके वहाँ पे प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाता है, अल्टरनेटिव्स को डिस्कस किया जाता है और देन एट द एंड डिसीजन मेकर जो है वो डिसीजन लेता है, बट दैट मे और मे नॉट रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ जो ग्रुप डिसीजन. So we have discussed different ways in which decision makers, they make their decisions. Then in our previous lecture we have also talked about the different qualities of successful decision makers. Like for example, one most important quality we have discussed earlier in our lecture is that courage. So the decision maker should be a courageous person, a bold person, a person who is willing to take the initiative, a person who is willing to take the risk. So अक्सर हम बात करते हैं higher the risk, higher gains and lower risk, lower gains. So here we are talking about a manager who takes calculated risk. So this manager is a proactive person who calculates the risk and then take decision. Then we have talked about communication skills of managers. Like this is really very important, that good decision makers, they use their best communication skills, they involve their subordinates in decision making and things like that. And then finally we talked in our earlier lecture about delegation. Okay, what is delegation, like for example, and why delegation is required, and what are the procedures to empower your employees. So in delegation, we earlier discussed that in delegation you delegate your decision making authority to your subordinates, to your team members. So we have discussed different areas in which one can delegate. We have also discussed certain areas like for example hiring, firing, policy making. So in these areas it is highly recommended that one should not delegate. Now we carry on our discussion on delegation, and today the topic of discussion is
what are the advantages of delegation? So positive aspects of delegation include higher efficiency. Of course, when we talk about with the help of minimum input, when we try to get the maximum output, this is called efficiency. So we need to ensure that we have the higher efficiency in our organization. So when we talk about our employees, of course, how we can motivate them, how we can make them efficient. So this is really very important. They are able to perform their activities quickly. So with minimum resources, with minimum input, they are able to get the maximum output, and this is only possible when you delegate them decision-making authority, when you empower them, when you authorize them to make decisions. Other very important advantages: increased motivation. As earlier discussed, that when you empower your employees, when you delegate your employees, when you involve your employees in decision making, their motivation level increases. Now motivation, of course, when you talk about motivation, of course people say that, and research proves that there are financial and non-financial rewards who really motivates employees. Now the thing is, when we talk about the public sector of Pakistan, people who are serving in this public sector, they give a lot of importance to authority, decision-making authority. So this gives them inner satisfaction, a sense of achievement, a sense of recognition. So they feel that they are really contributing something in their organization. और वो sense कहाँ से आएगा, वो achievement कहाँ से आएगा? जब आप उनको empower करते हैं, जब आप उनको delegate करते हैं decision-making authority. So in this way, you are increasing their inner satisfaction. And of course, increase in inner satisfaction results in higher motivation. And then when these employees, after having these powers in their hands, when they go for improving their performance, when they go for improving results, so of course that results in better performance, better efficiency, and better effectiveness. Another point is that develops the skills of your team. So of course, when we talk about teams, of course there are team dynamics. We talk about team issues, like for example there are conflicts in teams and there are issues in teams. So how to manage those conflicts and how to resolve those issues. So one very important suggestion here is that why not we empower our employees? Why not we give our team members a sense of recognition, a sense of pride? And this is only possible when we delegate them decision-making authority. So in this way, every team member feels that I have a decision-making authority in my hand and I can use it for the benefit of the organization and of course for gaining individual benefits as well. Here it is very important to remember that we need to have an alignment between the individual objectives and the organizational objectives. So of course employees, they are more motivated and they are high in energy level when their individual objectives are achieved. So we need to link the individual objectives with the organizational objectives. Another important delegation advantage is better distribution of work through the group. So of course you are talking about the work division here. Now in every group, as a good manager, as a good team leader or group leader, you know the strengths and weaknesses of your group members. So you delegate authority accordingly. You know that which employee has which skill. Like for example, some employees, they are good in one skill, the other employees are, of course, they have some other skills in which they feel more comfortable. So you need to delegate authority according to the expertise of your group members. So it means that you need to see that कि कौन से employees आपके लिए कौन सा काम बेहतर कर सकते हैं, and accordingly you give them, you delegate them decision making authority. And finally, faster decision making. Of course, when we talk about decision making, now the world is a global village. Now survival of the fittest की जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि like for example we have a lot of competition in the market, when we say that customer demands are increasing rapidly. So in order to meet and beat the competition, this is really very important that we need to move towards faster and
quicker decision making, and this is only possible when we delegate decision making authority to our employees. So instead they are waiting for us all the time. Like for example, one document moves to one officer and that officer is waiting that कि उसका boss आएगा और वो document sign करेगा and then that document decision will be implemented. तो बजाय ये कि उसको वेटेज में किया जाए, उसको क्यू में लगा दिया जाए, so why not we move towards implementation part. So somebody asked me what is the difference between public and private sector, and I told them that the basic difference between the public sector and private sector is the response time. So in this way we conclude that the quicker you make decisions, the better your efficiency and effectiveness is. So of course public sector can perform better than the private sector in Pakistan if we delegate our employees, if we move towards quicker decision making. Now there are some other advantages of delegation when we talk about the public sector of Pakistan. For instance, when we are talking about any organization that is involved in a kind of some productivity, they are involved in some manufacturing, so we can increase the productivity. So how we can increase the productivity? Of course we are improving their decision making process, we are empowering our employees. So of course when we empower our employees, they have more inner satisfaction. So of course when they have more inner satisfaction, so that results in their outer satisfaction, and of course the result is that is enhanced productivity. Then we talk about the department or team that becomes more enthusiastic, active and successful. Of course employees जब अपनी offices में आते हैं, so उनकी जो motivation है, उनका जो काम करने का जो interest level है, so we can increase that interest level, we can increase the willingness aspect, and we call that motivation, and that can be achieved with the help of delegation, and that is highly recommended here. Then employees career development के लिए that increases their energies. Like for example, when employees they are working in any organization in public sector of Pakistan, so they want to grow their careers, they want to be in that organization, because when they know that, when they are certain that they will get promotions, they will get benefits, they will get higher grades. So this is really very important. When you delegate your employees, they have a sense of achievement and their energy level increases, and they know that they will get promotion in near future. So this delegation also ensures that your trust level on your employees is increasing with the passage of time. So in order to ensure that your employees are doing the best, so you need to increase the trust level, and once you are able to increase the trust level, of course you can beat your competitors and you can do anything which is like not easy for others. Now there are some other advantages of delegation. For instance, it builds human resource capabilities. Of course humans, God has given them wonderful potentials, तो उनकी capabilities को develop करने के लिए delegation is one very important way of doing that. And then encouraging radical ideas and risk taking. Of course आप ज़्यादा bold होते हैं, आप ज़्यादा courageous होते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्विक आइडियाज़ आप लेके आते हैं, आप एक मेजर चेंजेस, एक बिल्कुल यूनिक आइडियाज़ की तरफ आप मूव करते हैं, आप क्रिएटिविटी की तरफ मूव करते हैं, आप इनोवेशन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू डेलीगेट योर एम्प्लॉयज़, बिकॉज उनकी सेंस ऑफ एक इन्वॉल्वमेंट, उनकी सेंस ऑफ जो ओनरशिप है, दैट इज़ इंक्रीजिंग. Or in order to increase the sense of ownership of your employees, it is really very important that you need to make them part of your decision making process. And of course the way out is that you need to delegate. Improving employee performance to an optimum level. Of course every employee has some discretionary behavior. Like for example, आपके बॉस ने आपको काम दिया है और आपको कहा गया है कि like for example 8 to 4 जो आपके टाइमिंग्स हैं 8 AM to 4 PM, 5 days a week आपकी वर्किंग है, तो लाइक फॉर एग्जांपल जो काम आपको दिया गया है वो आपके ऑफ टाइमिंग से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले कंप्लीट हो गया. फॉर इंस्टेंस कि आप 3 बजे तक आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, सो एट 3 PM आप अपने काम को कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, तो अब आप फारिग बैठे रहेंगे या आपने काम करना है, आप अपने ज़ाती काम करने शुरू कर देंगे या अपने ऑफिस के काम को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिशनरी बिहेवियर of that particular employee. So people
जिन एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट किया जाता है, जिन एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जाता है, जिन एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है, वो एम्प्लॉयज़ अपना डिस्क्रिशनरी बिहेवियर यूज़ करते हैं। और वो जो 3 से 4 का एक फारिग टाइम है उनके वक्त, अगर वो अपने पहले उन्होंने काम कंप्लीट कर लिए हैं, अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट कर लिया है, तो जो ही उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जिसमें दे आर फ्री, तो दे स्टार्ट इम्प्रूविंग देयर असाइंड वर्क. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि जो एक एडिशनल स्टेप एम्प्लॉयज़ लेते हैं, जो आपकी इमेजिनेशन से, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें उन एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है. बीइंग ए स्ट्रॉन्गर मोर प्रोडक्टिव कंपनी, ऑफ कोर्स जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर को हम ज़्यादा कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ज़्यादा कैसे प्रोडक्टिव कर सकते हैं. वी नीड टू डेलीगेट एंड देन हैंडलिंग चेंज ईजली and encouraging growth. Of course, the result of almost every change is resistance. So resistance is a natural phenomena. Like for example, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मुझे कहा जाता है कि यहाँ से उठ के उस तरफ बैठ जाएं, तो definitely I will think कि जी क्यों. So same is true in the organization कि जब एक एम्प्लॉई अपना एक काम रूटीन में कर रहा है और उसका बॉस कहता है कि आज से आपने ये कुछ नया काम भी करना है, या आपका जो वर्किंग मेथड है उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ नेचुरल रेजिस्टेंस. आप जब एक काम बार बार करते हैं तो आपको एक कंफर्ट लेवल उसमें आप चले जाते हैं. सो जब आप उस कंफर्ट लेवल में चले जाते हैं तो उस कंफर्ट लेवल से आप बाहर नहीं निकलना चाहते. और जब आपको चेंज की बात की जाती है, पॉजिटिव चेंज की बात की जाती है, तो डेफिनेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है. सो कंफर्ट जोन से आपने जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, एफर्ट जोन की तरफ आपने मूव करना है. सो ऑफ कोर्स चेंज रिक्वायर्ड सेक्रीफाइस. आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, आप पॉजिटिव आपको मूवमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको एडिशनल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी एंड थिंग्स लाइक दैट. सो जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक ग्रोथ हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट हो, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसकी विलिंगनेस की उनकी ज़रूरत है. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू डेलीगेट, व्हेन यू गिव देम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, when you authorize them, so in this way you ensure that कि वो change में जो resistance है, you are able to minimize that resistance and bringing out the very best in people and unlocking potential. Again, a very important point here that you are trying to bring out the best in your people and unlocking potential. Research has proven that कि 7 to 10% potential लोग जो हैं अपना वो potential use कर रहे हैं, 7 to 10%, और जो बाकी 90% almost है, और उस potential को बहुत कम लोग use करते हैं. So this is really very important कि वो जो potential एम्प्लॉयज़ अपना यूज़ नहीं कर रहे, उस पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए, ताकि उसको अनलॉक किया जाए, उस पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए ज़रूरी है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स एम्प्लॉय का डिस्क्रिशनरी बिहेवियर भी इन्वॉल्व है, उसका मोटिवेशन लेवल भी इन्वॉल्व है, उसका एक पीस ऑफ माइंड भी इन्वॉल्व है, तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी इन्वॉल्व है. तो उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी कि वो ख़ुद भी डिसीजन ले सके आपका एम्प्लॉई, तो आप उसको जब डिसीजन मेकिंग का अख्तियार दे रहे हैं, ऑफ कोर्स तो ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की, उसका मोटिवेशन, उसका डिस्क्रिशनरी बिहेवियर, उसकी इनर आउटर सेटिस्फेक्शन लेवल, ये सारा जब इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली उसका जो रियल पोटेंशियल है वो बाहर आ रहा है. और जब रियल पोटेंशियल बाहर आता है तो ऑफ कोर्स the employee is able to do wonders for you. The employee is able to do like any assigned task. उसको आपकी एक्सपेक्टेशन को वो एक्सीड कर जाता है, और जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बेहतर परफॉर्म करके आपको शो करता है अपनी परफॉर्मेंस. Now there are different stages to successful delegation. So these are the 4 stages. The first one is assume that people who work for you have ability and show you have confidence in them. So this is really very important कि जब आप successful delegation की बात करते हैं तो this is really very important that कि you assume कि people who work for you have ability and show you have confidence in them. तो एक तो आप अपने employees के ऊपर trust करें कि they have the ability, they have the competence, they have the skills. So you need to show that, you need to like prove it to your employees that you trust them, and when you delegate them, this proves your statement that you really trust your employees. Be specific about
what is expected, tell the person what should be done, why it is needed and when it should be completed. तो आप एक specific उसको information देंगे अपने employees को कि what should be done, हम करना क्या चाह रहे हैं और why it is needed, और जो हम काम करना चाह रहे हैं इसकी ज़रूरत क्यों है और इसको टाइम फ्रेम क्या है, हमारी डेडलाइंस क्या हैं. तो ये तीन चीज़ें जब आप अपने एम्प्लॉई को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दिस इज़ इंक्रीजिंग द confidence level, this is increasing the competence level, and this is increasing the focus of your employee. And then the next stage is tell them what should be done but don't tell them how. Very interesting finding according to research, that you tell them, your employees, that what should be done but don't tell them how. So it means that if you all the time tell your employees how to do this task, how to perform this activity, it means that your employees will become your copy. So your employees will start copying you. And of course, जो हमने earlier lectures में बात की थी कि when you become a carbon copy, and carbon copy is not required. So in order to move towards achievement of your vision, achievement of your objectives and goals, so this is really very important कि creativity के लिए, innovation के लिए ज़रूरी है कि आप अपने employees को बजाय ये कि आप उनको बताएं कि काम करने का क्या तरीका है, let them do that task, आप उनको बताएं कि करना क्या है, and then let them decide कि उसको उन्होंने असाइन टास्क को किस तरह परफॉर्म करना है. सो इस क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए आप उनको ऑथराइज करें कि जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है उसको वो खुद डिसाइड करें जो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं. एंड देन फाइनली गिव क्रेडिट एंड प्रेज जनरसली इफ अ पर्सन डज ए गुड जॉब. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तारीफ करें, रियल तारीफ करें, अप्रिशिएट करें, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दें, शाबाश दें, एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करें, एक सोशल गैदरिंग्स करें. So things like that really encourages your employees. So this is really very important कि जो आपके best performers हैं उनको आप generously appreciate करें. इसमें आप बिल्कुल कंजूसी से काम ना लें क्योंकि यही employees आपका most important asset हैं और यही employees हमारी organization को बहुत ऊपर भी लेके जा सकते हैं और यही employees खुदा ना खास्ता हमारी organization को बहुत डिक्लाइन की तरफ भी लेके जा सकते हैं. तो वाई नॉट कि अपने बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हम अप्रिशिएट करें, उनको उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करें, उनको हम रिवॉर्ड करें ताकि ये एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें. नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन और पुअर डेलीगेशन एज वेल. So signs that your delegation is failing include human resource morale is down. Now आपको जैसे ये लगता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मोरल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि जो आपका डेलीगेशन का तरीका है देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट यू आर ऑलवेज वर्किंग लेट. अगर आप हमेशा लेट आवर्स तक आप बैठे हुए हैं, आप लेट सिटिंग कर रहे हैं और ये तकरीबन हर रोज़ अगर ऐसा हो रहा है दैट शोज दैट कि इट मीन्स दैट कि योर परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग. योर टीम इज़ कन्फ्यूज्ड, कॉन्फ्लिक्टिंग, टेंस. अगर आपकी टीम जो है वो कन्फ्यूज है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, हाई स्ट्रेस चल रही है, तो ऑफ कोर्स it means that your जो delegation है that is not of good quality, उसके अंदर कोई ना कोई problem है. And then not delegating a task because you think that you would do it better than anyone else is a poor excuse. So doing this will just make life difficult for yourself. So this is really very important कि अगर आप ये समझते हैं कि आपसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता और अगर आप किसी को डेलीगेट करेंगे टास्क, अगर आप किसी को डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देंगे तो वो आप जितना अच्छा काम नहीं कर सकता. अगर आपकी ये सोच है तो डेफिनेटली ये ना सिर्फ क्वालिटी के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ करें बट इन द लॉन्ग रन आपके लिए अपनी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें क्वालिटी देना और उसको परफॉर्म करना आपके लिए बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो सकता है. Another disadvantage of poor delegation is limitations of this approach, like assigning authority does not mean that someone has the ability,
motivation and understanding necessary to perform. So again, अगर आप delegate करके आप भूल जाते हैं कि जो जिस person को आपने delegate किया है क्या उसके पास वो competence, motivation और understanding है जो कि prerequisites हैं. So this is really very important कि you need to give awareness to your employees. Delegation करने से पहले आप उनको motivate करें, उनको awareness दें, उनकी ability को आप check करें. तो एबिलिटी को देखें, उनकी स्किल लेवल को देखें, उनकी मोटिवेशन को देखें, उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखें, और ये तमाम चीज़ें इंश्योर करने के बाद अगर आप डेलीगेट करेंगे दैट कैन वर्क वेल फॉर यू. अदरवाइज अगर आप इन चीज़ों को फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं सो दैट मे रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस. Another disadvantage of poor delegation is, are the involved parties coming to you angry and confused? So delegating a project to one department is likely to have implications for other departments. Keep it in mind as you delegate. So definitely आपकी organization में जितने departments हैं they are interdependent. उनके आपस के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में उनकी interdependent हैं, interrelated हैं. तो definitely जब आप एक department को delegate कर रहे हैं तो आपकी उसकी implications देखनी है कि उसकी implications दूसरे departments पे क्या हैं. तो of course तमाम डिपार्टमेंट्स को सामने रखते हुए देन यू ऑफ कोर्स डिसाइड योर डेलीगेशन स्ट्रेटजी कि आपकी क्या होगी. कि लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक डिपार्टमेंट को डेलीगेट करते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट को डेलीगेट नहीं करते तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो तमाम चीज़ों को आपने अलाइन करना है, बैलेंस करना है ताकि किसी डिपार्टमेंट के साथ ज़्यादती ना हो और तमाम डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं दे फील रियली ऑनर्ड एंड दे फील रियली मोटिवेटेड कि उनकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है, ना कि वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि एक डिपार्टमेंट को तो आपने बहुत ज़्यादा डेलीगेट कर दिया और दूसरे डिपार्टमेंट को शायद आप इग्नोर कर रहे हैं. Deliberate redundancy. If you are thinking that assigning the same task to multiple managers inspires healthy competition, you are sadly mistaken. This type of delegation actually inspires conflict. तो अगर आप एक ही काम मुख्तलिफ मैनेजर्स को दे देते हैं और आप कहते हैं कि दिस इज गुड फॉर हेल्दी कंपटीशन, दिस इज अ बिग ब्लंडर बिकॉज दिस विल जनरेट अ नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल आपने एक रिपोर्ट लिखवानी है, एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवानी है, अब वही फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप 3 मैनेजर्स को दे देते हैं तो व्हाट विल हैपन. अब आप ये सोच रहे हैं कि ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा और तीनों मैनेजर्स जो हैं दे विल डू देयर बेस्ट. You know what will be the possible result? जब वो तीनों मैनेजर्स अपनी रिपोर्ट्स लेके आएंगे और जब उन तीनों रिपोर्ट्स को जब कंपेयर करना शुरू किया जाएगा तो डेफिनेटली एक नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे क्रिएट होने की एक चांसेस हैं. सो इन ऑर्डर टू लाइक मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट तो वाई नॉट के तीनों मैनेजर्स को आप एक सिमिलर काम एज ए ग्रुप की शक्ल में अगर आप डेलीगेट कर दें दैट कैन वर्क रियली वेल फॉर यू. अदरवाइज एक ही सिमिलर एक्टिविटी को डिफरेंट पर्सनस को देने के बाद अगर आप समझते हैं कि दिस इज़ अ गुड डिसीजन तो अगेन आई विल हाईली रिकमेंड दैट कि इस तरह के डिसीजन जो है नहीं लेने चाहिए और सेम एक्टिविटी को एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सनस को दे दें ताकि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बेहतर डिसीजन के साथ आपके पास बेहतर एक्टिविटी को परफॉर्म करके आपके पास आए, ना कि एक ही एक्टिविटी को आप डिफरेंट लोगों को दे दें. तो डेफिनेटली दैट कैन लीड यू टुवर्ड्स नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट. And another disadvantages of poor delegation are much like parents who do a child's homework thinking they are helping. तो ये एक बड़ी मेजर मिस्टेक है जो हमें नज़र आती है कि कई वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों का अपना होमवर्क जो है वो करके दे देते हैं बिकॉज दे थिंक दैट कि वो अपने बच्चे की हेल्प कर रहे हैं स्टडीज़ में. सो दिस इज़ अ बिग मिस्टेक. सो व्हेन यू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट द अर्न पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि उसके साथ जो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आप डेलीगेट करेंगे. आप अवेयरनेस देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को जिनको आप डेलीगेट कर रहे हैं कि दीज आर द प्लस एंड माइनसेस. तो जब हमने देखा अर्लियर एग्जाम्पल में कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के होमवर्क करते हैं और वो ये समझते हैं कि वी आर हेल्पिंग आवर चाइल्ड इन स्टडीज़ सो दे आर हाईली मिस्टेकन बिकॉज चाइल्ड इज़ मूविंग अवे फ्रॉम लर्निंग. सो बच्चा ये समझना शुरू हो जाएगा
कि होमवर्क करने का तरीका ही यही है, तो उसका लर्निंग कम हो जाएगी, उसकी अपनी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी और वो तमाम चीज़ों में आपके ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। और ऑफ कोर्स इन द लॉन्ग रन जब आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली चाइल्ड की परफॉर्मेंस जो है स्टडीज़ में उसके कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दिस थिंग शुड नॉट बी डन बाय पेरेंट्स। एंड देन ऑफ कोर्स जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को तो उसके साथ साथ उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसकी अवेयरनेस भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे दें कि अगर इस अथॉरिटी का मिसयूज़ किया गया तो दीज आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और इस अथॉरिटी को अगर राइट डायरेक्शन में यूज़ किया गया तो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स। Delegating to weakness. Delegating task outside the scope of one's competence. Like for example कि you know that कि एक person की competence कम है, उसके बावजूद अगर आप उसको delegate करते हैं तो again this is a big mistake कि आप सबसे पहले you need to ensure that कि जिस person को आप delegate कर रहे हैं उसके पास वो कॉम्पिटेंस लेवल है, और जब तक उसके पास वो कॉम्पिटेंस लेवल को आप इंश्योर नहीं करते उस वक्त तक डेलीगेट ना किया जाए। क्योंकि अगर एक पर्सन इनकॉम्पिटेंट है और आप उसको डेलीगेट कर देते हैं तो इट मीन्स दैट कि वो मजीद कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने के चांसेस हैं और वो बहुत सारी चीज़ें मे बी आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस हैं। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर द इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस वी हैव टू सी द कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड बिफोर डेलीगेटिंग to our employees. And then classic examples of this include putting the financial officer in charge of marketing. Now this is a very simple and straight example कि आप एक फाइनेंस के पर्सन को आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट का चार्ज दे देते हैं। सो दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक, आई वुड से दैट। सो इससे बड़ी मिस्टेक आप बहुत कम कंपैरिजन है कि एक पर्सन जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसका एक्सपीरियंस, जिसका एटीट्यूड, जिसका बिहेवियर, जिसकी कॉम्पिटेंसी, जिसकी स्किल फाइनेंस में है, आप उसको मार्केटिंग का हेड लगा रहे हैं, मीनिंग दैट कि मार्केटिंग के अंदर वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। जिसको मार्केटिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केटिंग में एक्सपर्टीज नहीं है, जो मेजर थ्योरीज हैं उसका नहीं पता, मार्केटिंग के चैलेंजेस का नहीं पता, तो डेफिनेटली वो एक लेमैन की तरह वहाँ पे आएगा और एक लाइक फॉर एग्जांपल वो एक काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनेंस जो ऑफिसर है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर आप लगाते हैं तो दैट इज़ गुड फॉर हिम एंड दैट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और मार्केटिंग पर्सन को अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगाते हैं सो अगेन दैट इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन एज वेल। सो जब आप डेलीगेट करते हैं किसी को तो यू मस्ट सी कि उस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, ये तमाम चीज़ों को आपको पहले से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, उसको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपने उसको डेलीगेट करना है या नहीं करना। Then concluding this delegation, we talk about effective delegation will enable you to develop good people. Of course, good people here means that most efficient and most effective employees. So we can ensure that we can develop most efficient and most effective employees in our organizations. अगर हम effective delegation करते हैं, it will save you time. Of course, जब आप एक इफेक्टिव डेलीगेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर सेविंग टाइम बिकॉज आपकी क्विक डिसीजन मेकिंग हो रही है, आपकी ऑफिस के अंदर फाइल्स जल्दी मूव हो रही हैं, आपके एम्प्लॉयज़ चूँकि सेंस ऑफ अचीवमेंट है, एक सेंस ऑफ प्राइड फील कर रहे हैं, वो एक ऑनर फील कर रहे हैं, वो अपने पोटेंशियल रियल पोटेंशियल को बाहर लेके आ रहे हैं। सो वो एक अपने पॉजिटिव डिस्क्रिशनरी बिहेवियर को वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर सेविंग टाइम एंड देन it will give your business the characteristics of a well oiled machine। जैसे कि किसी मशीन को, जैसे कार का इंजन है तो कार के इंजन में अगर आप ऑयल डालते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म करता है। तो हर
और मशीन के लिए ऑयल का एक ख़ास उसका एक माइलेज है कि इतने किलोमीटर्स के बाद आपने उसका ऑयल चेंज करना है. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप डेलीगेट करते हैं तो यू शुड नो दैट कि किसको कब डेलीगेट करना है और उसको क्या क्या डेलीगेट करना है और उसकी कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स के मुताबिक आपने डेलीगेट करना है. सो पुअर डेलीगेशन विल गेट यू फ्रस्ट्रेशन. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हियर दैट आप एम्प्लॉइज हाई स्ट्रेस में चले जाते हैं. सो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए नहीं है जिनको आपने डेलीगेट किया, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ्रस्ट्रेशन है. एज ए मैनेजर जब आपने डेलीगेट किया आपके लिए भी फ्रस्ट्रेशन है. और ऑफ कोर्स जब आप फ्रस्ट्रेशन होगी तो ऑफ कोर्स आप अपनी राइट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. पुअर टास्क एग्जीक्यूशन, ऑफ कोर्स जो डिफरेंट टास्क असाइन किए गए हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते व्हेन देयर इज पुअर डेलीगेशन. ए ग्रुप ऑफ डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज, ऑफ कोर्स जब आप पुअर डेलीगेशन करते हैं द रिजल्ट इज कि एम्प्लॉइज मोटिवेशन लेवल डिक्लाइंस, इट गोज डाउन. नाउ वी मूव आवर डिस्कशंस टुवर्ड्स एम्प्लॉय retention management. Now an organization is known by the people it keeps. So किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, उसकी मार्केट रिप्यूट की बात करते हैं, तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के लोग काम करते हैं. सो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट एडवर्टाइज करती है तो उसमें मोस्ट टैलेंटेड लोग तब अप्लाई करते हैं व्हेन दे नो दैट कि रिप्यूट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेटर देन अदर्स. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन का ताल्लुक वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे होता है. सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन बाय द पीपल इट कीप्स. Now, researchers and philosophers, they are of this view that our asset walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back the next morning. Now, this asset is your employee. So, our most competent employees, हर रोज शाम को जब छुट्टी होती है तो वो अपने घर को चले जाते हैं. So, how to ensure that कि ये मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज दोबारा आपके ऑफिस में कल आए. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे नीड टू इंश्योर दैट. और उसके लिए एम्प्लॉय रिटेंशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है कि हाउ टू कीप योर बेस्ट एम्प्लॉइज. उसके लिए आज इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने बेस्ट एम्प्लॉइज़ को किस तरह कीप कर सकते हैं, उनको किस तरह ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, उनको किस तरह हम लॉयल बना सकते हैं. सो टॉकिंग अबाउट टैलेंट, बिल गेट्स सेज दैट टेक अवे आवर टॉप 30 पीपल एंड वी आर लेफ्ट विद अ mediocre company. So this is a statement given by Bill Gates, who is the owner of Microsoft. So this is really very important statement, and that shows the significance of HR. That is why we always say that a human resource is the most important asset of an organization, and human resource ko we also call that intellectual capital. Now talking about the organizations with high levels of employee retention, so there are 38% higher customer satisfaction scores, 22% higher productivity, 27% higher profits. So it means that कि जिन organizations के अंदर high levels of employee retention है, वहाँ पे customer satisfaction, productivity और profits जो हैं वो rapidly increase हो रहे हैं, because when you are able to retain your best employees, they are giving you the best. वो अपने best potential को बाहर लेके आ रहे हैं और वो best efficiency और best effectiveness आपको दे रहे हैं. So it means that जब employees are fully involved in their job responsibilities, so of course वो अपने best potential को बाहर लेके आ रहे हैं, and that is possible when those employees are highly satisfied with the organization. तभी तो आप उनको retain कर सकेंगे. And then employee engagement derives business results. Now talking about employee retention, so employee retention is a process in which the employees are encouraged to remain with the organization
for the maximum period of time or until the completion of the project. So here employee retention is beneficial for the organization as well as for the employee. So again, employee retention is not only beneficial to the organization, it is also beneficial to the employee as well, because organization को तो definitely benefit हो रहा है, क्योंकि when you are able to keep your best employees with you, so of course with the passage of time उनका experience level increase हो रहा है, उनकी expertise increase हो रही है, उनकी awareness level increase हो रहा है, तो definitely the result is better efficiency and effectiveness. On the other side, employee जो उस organization में उसको छोड़ के नहीं जा रहा, उसी organization के अंदर अपना career बना रहा है, उस career को grow कर रहा है, तो एक organization के अंदर रहते हुए employee जब अपनी expertise को improve करता है, अपने experience को बेहतर कर रहा है, तो definitely एक better career management हो रही है, एक better career growth हो रही है. Defining HR retention, the extent to which an employee is committed to their work and their organization, and the extent to which this commitment impacts their performance and intent to stay with the organization. So this is a wonderful definition of human resource retention, कि extent to which an employee is committed to their work, कि आपकी अपनी काम के साथ कितनी commitment है, organization के साथ आपकी कितनी commitment है, आपकी परफॉर्मेंस के साथ कितनी कमिटमेंट है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर स्टे करने में आपकी कितनी कमिटमेंट है. तो आपकी विलिंगनेस क्या है, मोटिवेशन क्या है, कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ कितनी कमिटमेंट है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कितनी कमिटमेंट है. सो दैट शोज दैट के जो HR रिटेंशन है वहाँ पे इट वर्क्स और नॉट. एंड देन अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्ड बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स the organization and its values is called HR retention. तो this is really very important कि एक positive attitude की जब हम बात करें कि employee की जो thinking है, employee की जो perception है, कि वो उस organization के साथ, उसकी values के साथ जो उसकी एक ताल्लुक है, एक relationship है, again that shows the retention level here. So what it is, based on these definitions, HR retention is the total of behavior employees espouse in the organization, which primarily should be characterized by belief in the organization. कि उस organization के ऊपर उसका कितना belief है, employee कितना believe करता है कि ये organization जो है ये कितना बेहतर काम कर रही है, इसकी contribution क्या है, ethical point of view से, legal point of view से, शरी point of view से, Islamic point of view से, इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारे सोसाइटी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कंट्रीब्यूशन है. सो थिंग्स लाइक दैट आपकी बिलीफ जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंड देन ड्राइव टू वर्क एंड मेक थिंग्स बेटर. सो काम के लिहाज की तरफ आपकी कितनी ज़्यादा मोटिवेशन है, आपकी विलिंगनेस कितनी है, एंड द रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर अदर्स, कि आप ये देखते हैं कि आप कितना रिस्पेक्ट करते हैं अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड देन डिज़ायर टू लर्न न्यू स्किल्स, और क्रिएटिविटी और इनोवेशन की तरफ आप जाना चाहते हैं नहीं, तो आपका क्या डिज़ायर लेवल है. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू हैव ए गुड HR रिटेंशन स्ट्रेटजी, पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ गुड HR रिटेंशन स्ट्रेटजीज वी कैन इंश्योर एंड वी कैन इम्प्रूव द बिलीव, ड्राइव, रिस्पेक्ट एंड डिज़ायर levels. So this is really very important. So retention is commitment based, like for example here we talk about the rational commitment. Employees believe they will personally benefit, like for example financially, developmentally or professionally from the team or organization. तो यहाँ पे एक rational commitment है, आप एक अपने चीज़ को ब्रेन से डिसाइड करते हैं, अपने दिमाग से आप सोचते हैं क्योंकि फाइन कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं अपना कैरियर बनाता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के मैं नहीं जाता, तो डेफिनेटली उससे मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, आई एम लर्निंग, मेरी डेवलपमेंट हो रही है, मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है, और यहाँ पे रहने में आई थिंक जो आप सोच रहे हैं कि एक मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, and then it makes sense for them to stay with the organization. So of course जब आपका organization का reward system appropriate है, आप अपनी एक supportive environment दे रहे हैं employees को, तो वो एक reason बनता है, एक logic बनता है उनकी rational commitment का towards
ऑर्गेनाइजेशन। इमोशनल कमिटमेंट जब हम बात करते हैं कि रिटेंशन इज कमिटमेंट बेस्ड, तो उसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इमोशनल कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन। सो बिलीविंग इन, वैल्यूइंग और enjoying their day-to-day work, teams, managers और organizations. So now you see that कि एम्प्लॉइज जिनको ऑफिस आने का दिल करता है, जिनको काम करने का दिल करता है, बिकॉज वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उनकी एक अपने कोलीग्स के साथ, अपने जूनियर सीनियर्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुकी है, एक अटैचमेंट डेवलप हो चुकी है। तो वो जो एक बॉन्डेज डेवलप हो चुका है, एक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होती जा रही है, तो डेफिनेटली एक इमोशनल कमिटमेंट उनकी डेवलप हो गई है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बिकॉज दे कैन मेक a link between their role and organizational objectives and value system, and they enjoy or find fulfillment in the work. So उनका एक role define हो गया कि like for example जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो उनके एक अपने लाइक फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ के साथ, वो एक लिंक डेवलप हो गया है। और जो जिस चीज़ को एम्प्लॉय वैल्यू दे रहा है, जब उस जिस चीज़ को एम्प्लॉय वैल्यू दे रहा है उसको जब वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेट करता है, तो देयर द एम्प्लॉय स्टार्ट्स enjoying his or her work, and of course that results in better retention of employees. Now we talk about role-based levels of retention. Here there are 5 work-related roles that an employee can assume, and these are the first one is job holder role. Employees come to work and do the job that is listed in their job description. So this is very straight कि जो आपकी job responsibilities हैं, आप आए और आपने perform किया. Team member role. Employees go above and beyond to help members of their team work toward common goals. तो यहाँ पे एम्प्लॉई सिर्फ अपना रोल परफॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फोकस नहीं कर रहा, उसके साथ साथ वो बाकी टीम मेंबर्स को हेल्प आउट भी कर रहा है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको जाके हेल्प भी कर रहा है, एज ए हेल्पिंग हैंड वहाँ पे जा रहा है, और एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की बात कर रहा है। एंटरप्रेन्योर रोल. Employees come up with new ideas and try to get those ideas implemented. This is really wonderful. So employees is moving towards creativity and innovation. Employee new ideas लेके आ रहा है और उसके दिमाग में एक नए आइडियाज़ हैं कि जी काम करने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं। सो न्यू आइडियाज़, यूनिक आइडियाज़ के साथ, एक्सेप्शनल आइडियाज़ के साथ जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, उनको लेके आ रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। Career role. Employees do things to enhance their career in the organization. They learn, they adopt new skills and more. So अपने एक कैरियर को फोकस कर रहा है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से अपने कैरियर को डेवलप कर सकता हूँ। एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशन मेंबर रोल. Employees do things that promote and help the company even if it's not part of their jobs or their team duties. So this employee is like not only meeting the expectation of the employer, this employee is actually going beyond the expectation of the employer. Like for instance, केस एम्प्लॉई की जब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन मेंबर रोल, तो ये एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली की तरह ले रहा है कि सिर्फ अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या टीम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं देख रहा, उसके साथ साथ वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट को बिल्डअप करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो अपना एक नेसेसरी रोल प्ले कर रहा है। नाउ देयर आर एम्प्लॉई रिटेंशन स्ट्रेटजीज, लाइक फॉर एग्जांपल वी से दैट हियर टुडे, हियर टुमारो. So transforming your workforce from high turnover to high retention. And then to do this, we need first to look at the main reasons for why work for employees retention, why do employees stay. So in order to see that, let us see that why organizations focus on employee retention. Like for example, employees को retain करने की क्यों ज़रूरत है या फोकस करने की क्यों ज़रूरत है? These are the major reasons. And the first one is new employee hiring cost. Of course, जब आप नया एम्प्लॉई हायर करते हैं तो एक तो डेफिनेटली
आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करनी है, और न्यू एम्प्लॉय को आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, और डेफिनेटली न्यू एम्प्लॉयज़ टेक्स टाइम कि वो लर्न करें, अवेयरनेस हो, और वो एक आपकी एक्सपेक्टेड डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस लेवल तक आते हुए दैट टेक्स टाइम। तो ये तमाम जो पीरियड इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स उसमें आप एक कॉस्ट बियर कर रहे हैं और आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है न्यू एम्प्लॉई जब आप हायर कर रहे हैं। टू कीप प्रोडक्टिविटी मेंटेन, आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है ना सिर्फ आप उसको मेंटेन करें बल्कि आप उसको इंक्रीज करें। सो यू नीड टू हैव मोर like for example persons like who are more experienced, who are more loyal with the organization, आप उनकी बात करें, और वो वही हैं जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। तो जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जब आप उनको मेंटेन करते हैं, उनको कीप करते हैं, सो दे हेल्प यू ग्रो योर प्रोडक्टिविटी लेवल, दे हेल्प यू मेंटेन योर प्रोडक्टिविटी लेवल। टू रिटेन पोटेंशियल टैलेंट, ऑफ कोर्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है आप उसको रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे हमने बिल गेट्स की बात की कि अगर हमारे टॉप ह्यूमन रिसोर्सेज अगर हमें छोड़ के चले जाएं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली जो बेस्ट टैलेंट है आप उसको रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर यही टैलेंट किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जाके ज्वाइन करता है तो डेफिनेटली उस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिक्लाइन में चली जाएगी। सो दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन हियर व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉय रिटेंशन, टू रेस्क्यू फ्रॉम द लीकेज ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स आपके जो मोस्ट टैलेंटेड most competent employees हैं, human resources हैं, of course they have complete knowledge about your working, they have all the most sensitive information with them. So जब ये employees जिनके पास आपकी तमाम information है उसकी leakage को रोकने के लिए ज़रूरी है कि you must retain those employees to maintain good internal relationships. Of course आप चाहते हैं कि यू वांट टू इंक्रीज द मोरल ऑफ योर एम्प्लॉयज, यू वांट टू improve the efficiency and effectiveness of your existing employees. So आप अपने employees के को ही प्रमोट कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ की कैरियर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैरियर ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ जाए और उनको खुशी हो, उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव हो जाए और वो उनका विलिंगनेस लेवल इंप्रूव हो जाए, उनका मोटिवेशन लेवल इंप्रूव हो जाए और एक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होगी. सो दिस इज़ अनदर गुड रीज़न, दैट इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशंस need to focus on employee retention in the public sector of Pakistan. Now talking about HR critical findings, 1 out of every 3 people plan on leaving in the next 2 years according to Hay Group USA. So this is a very important finding that we are talking about the most competent HR. Here we are talking about the good human resources. तो जो human resources हमारे most competent हैं so according to research this says that कि हर 3 में से 1 पर्सन जो है वो प्लान कर रहा है कि वो नेक्स्ट 2 years में ऑर्गेनाइजेशन को स्विच करने की सोच रहा है. And this is really a very important critical finding when we talk about human resource retention. Now it costs much more to replace employees than to keep them. So of course research से ये प्रूव हुआ है कि अगर आप employees को retain करते हैं तो आपकी कम कॉस्ट आती है और अगर आप new employees को हायर करते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट आती है. Like for example अगर आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिटेन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंसड है, उसके पास स्किल्स हैं, उसका एक अवेयरनेस लेवल इंक्रीज हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसकी उतनी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप न्यू एम्प्लॉय लेके आते हैं तो एक तो हायरिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, दूसरा उसका ट्रेनिंग पीरियड जो ट्रेनिंग टाइम चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स ये तमाम एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं. तो डेफिनेटली जब आप न्यू एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और जब आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की मदद से अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम है. सो हैव यू एवर हायर्ड द रॉन्ग पर्सन?
सो वी नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। अगर आपने कभी इस किस्म के डिसीजन मेकिंग की है, या यू कैन आस्क योर एल्डर्स, या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो हायरिंग करते हैं, तो अगर आप उनसे पूछें कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी रॉन्ग पर्सन को हायर किया, तो ऑफ कोर्स देयर आर मैनी एग्जांपल्स जब रॉन्ग हायरिंग की गई। सो हायरिंग द राइट पीपल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू यू नो व्हाट द राइट पर्सन लुक लाइक? सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट पर्सन जो है वो कैसा होता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट टिपिकल हायरिंग प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम टिपिकल हायरिंग प्रैक्टिसेस को जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो देन वी कैन इंश्योर दैट कि वी आर एबल टू हायर द करेक्ट पर्सन for in our organizations. So the first typical hiring practice is failure to detect motivational fit with job. तो जब आप हायरिंग कर रहे हैं तो आपको ये डिटेक्ट करने में अगर आप फेल हो जाते हैं कि उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ और जो जॉब एप्लीकेंट है उसका जो मोटिवेशन लेवल है उन दोनों के दरमियान कोई मैच है कि नहीं। एप्लीकेंट्स एग्जैजरेट टू गेट ए जॉब। नाउ दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिसेस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं ड्यूरिंग जॉब इंटरव्यू दे एग्जैजरेट। मोस्ट ऑफ द जॉब एप्लीकेंट्स दे टेल दैट दे कैन डू दिस, दे कैन डू दैट। डेफिनेटली तमाम चीज़ों को ऑन द स्पॉट ड्यूरिंग इंटरव्यू उसको चेक करना, उसको जज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मोस्ट हायरिंग डिसीजंस मेड बाय इंट्यूशन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द इंटरव्यू। वो अक्सर कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन रिमेन्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हायरिंग की जा रही है उसमें एक उसकी फेलियर की जो एक हमें रीज़न नज़र आ रही है बैड हायरिंग की, उसकी रीज़न ये है कि पहले चंद मिनट के दौरान ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि इस जॉब एप्लीकेंट को आपने जॉब देनी है या नहीं। तो आपकी इंट्यूशन, आप अपनी परसेप्शन की मदद से डिसाइड कर रहे हैं। तो बजाय ये कि पूरे इंटरव्यू के बाद, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के बाद आप डिसाइड करें, आप शुरू के चंद मिनट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो जॉब एप्लीकेंट मेरे पास बैठा हुआ है इसको मैंने हायर करना है या नहीं करना। 2 out of 3 hires proved to be a bad fit within the first year. So this is again a highly critical finding. And then most interviewers not properly trained. हम हमेशा ये कहते हैं कि जो इंटरव्यूईज हैं, जो जॉब एप्लीकेंट्स हैं, वो ट्रेनिंग लेके आएँ, वो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, वो अपनी स्वॉट एनालिसिस करके आए, वो एक जॉब सर्वे करके आए। तो इट मीन्स कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके आए, अपनी इंटरव्यूइंग स्किल्स को इम्प्रूव करके आए। लेकिन ऑन द अदर साइड देयर इज़ really a vital need here that most interviewers they need training. So this training should be mandatory because it is really very important for all interviewers that they should exactly know what to ask and what not to ask. And this is only possible when they have received adequate training. And then excellent employees placed in the wrong jobs grow frustrated when unable to utilize their strengths. तो अगर like for example आप hire करते हैं excellent employees को और आप उनको रॉन्ग जॉब्स में आप उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर देते हैं जो कि उनकी कॉम्पिटेंसी के साथ, उनकी क्वालिफिकेशन के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं कर रही, तो डेफिनेटली द रिजल्ट इज़ एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन। और जब एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेशन होती है तो डेफिनेटली दे आर अनएबल टू यूटिलाइज देयर बेस्ट पोटेंशियल। नाउ हियर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज दैट why the good people, why the good employees quit. Now these are some of the reasons why good people in the public sector of Pakistan they quit. Like for example, one major reason is poor match between the person and the job. अगर job responsibilities के साथ और person की qualification experience के साथ if there is a poor fit, if there is a poor match, दोनों मैच नहीं कर रहे, आपने फॉर एग्जांपल आपने डिग्री मार्केटिंग में ली है और आपको जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फाइनेंस में दे दी गई है या वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ पुअर मैच। और जब पुअर मैच होगा तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होगी एम्प्लॉयज़ को, और जो मोस्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं दे विल क्विट। पुअर फिट विद द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड कल्चर। ऑफ कोर्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ certain environment, culture. So this is really very important
कि आप ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस या आप देख लें कि जो जॉब एप्लीकेंट है क्या वो उस कल्चर के मुताबिक, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक फिट इन होगा कि नहीं। अगर जॉब एप्लीकेंट उस कल्चर और उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अगर फिट इन नहीं होता तो डेफिनेटली हाई स्ट्रेस में वो एम्प्लॉई चला जाएगा अगर आप उसको हायर कर लेते हैं, एंड डेफिनेटली जब वो एम्प्लॉई हाई स्ट्रेस में जाएगा या लो स्ट्रेस में जाएगा तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, एंड देन द रिजल्ट इज नॉर्मली दीज पीपल क्विट। पुअर अलाइनमेंट बिटवीन पे एंड परफॉर्मेंस, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है वो तो बहुत हाई है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपकी पे कम है, आप जो रिवॉर्ड्स हैं वो कम दे रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई है, तो डेफिनेटली जब पुअर अलाइनमेंट होगी बिटवीन पे एंड परफॉर्मेंस, जब पे फॉर परफॉर्मेंस का सिस्टम नहीं होगा तो डेफिनेटली पीपल क्विट। पुअर कनेक्शंस बिटवीन द इंडिविजुअल, देयर को-वर्कर्स एंड द सुपरवाइजर, तो अगर कोई इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का, कोऑपरेशन का कोई इशू होगा, कोई नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली पीपल क्विट। पुअर अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, now every employee when he or she joins any organizations they have a expectation level, they want to make their career, they want to grow their career, so they want to stay in that organization, but when they see that कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं या ना होने के बराबर हैं, यहाँ पे कैरियर एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं या बहुत कम है, तो डेफिनेटली they think of leaving that organization. Okay, in our today's lecture we have talked about different like for example employee retention strategies. We have talked about other areas like how we can improve the performance of our employees in the public sector of Pakistan. Particularly हमने focus किया कि decision making process क्या होता है, decision styles क्या हैं, मुख्तलिफ issues, मुख्तलिफ problems जब आप face करते हैं in your organization, how to tackle, how to manage those problems, and then we talked about कि how to retain your best employees. हमने final जो हमने हमारी discussions थी आज उसमें हमने देखा कि this is really very important that we need to retain our best employees because research has proved that if you hire a new employee that costs you more, and if you retain your existing employee that costs you less, one thing. And secondly, of course, you want to maintain and improve your productivity level, you want to improve your performance and things like that. So in order to ensure that, you need to have most talented and most experienced person with you, and this is only possible when you are able to retain your best employees. तो जब हम public sector of Pakistan की बात करते हैं तो definitely जब हम देखते हैं कि there are issues in the hiring process, like for example different जो observations हैं कि देखा गया कि during job interviews there are certain issues, like for example trainees जो interviewees हैं, जब interviewees किसी भी interview में appear होते हैं, so हमेशा ये कहा जाता है कि they need to get proper training, they need to improve their presentation skills, they need to improve their like for example focus on their studies. But on the other side, it is also important for the interviewers कि उनको भी training होनी चाहिए ताकि they should know कि कौन से questions पूछने हैं, what are the standard procedures for conducting good interviews. So आज की discussion से हमने ये भी learn करने की कोशिश की कि why good human resources quit, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि like for example आपने एक person जो है you have hired that person for like for example marketing department, लेकिन उस person की qualification और experience और जो competency है वो finance की है, तो definitely mismatch की वजह से people quit. Then of course office के अंदर एक environment है, आपकी organization के अंदर एक खास environment है, क्योंकि हर organization का अपना एक culture है, अपना एक environment है. So if there is a mismatch कि अगर उस person का जो कि इस वक्त आप न्यू पर्सन हायर कर रहे हैं अगर मिसमैच होगा तो डेफिनेटली वो पर्सन कंफर्टेबल नहीं होगा एंड दैट पर्सन मे क्विट. सो वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी अदर रीजंस व्हाई गुड human resources quit our organizations. So we need to look into the root causes and then we need to move forward and manage these issues. So I hope that कि आज की discussion से आपने काफ़ी learn किया होगा and thank you very much all of you. So inshallah see you in the next lecture.